Okay, shall we start, Manish? Yes, sir. Okay. Okay, today I'll be taking the instruction sets. We'll be seeing the instructions one by one. I won't be using the whiteboard now throughout this session today because the instructions which I'll be teaching you, that thing I will explain you. I want everyone to pay attention on the screen. Okay, and whenever you have doubt, please ask me then and there. Okay, and if required, I will be explaining you through on the Jamboard. अगर जहाँ पे जरूरत गिरी वहाँ पे Jamboard पे मैं बताऊंगा. But today I won't be using the physical whiteboard. So explanation will be done by using the PPT, and simultaneously we'll see all the instructions. Not all the instructions, but the instructions which are more important. And then in other instructions, you have to do by yourself. जो मैं instruction नहीं लूँगा in the session, you can do by yourself. Okay? Because in the theory exam or in the Viva, any instruction can be asked. So you should be well prepared to answer if any question is asked. Okay? So as already I have told you that instruction set comprises of the mnemonics. Okay, assembly language program हम जब लिखते हैं, so it contains the mnemonics. Okay, so mnemonics means like move, add, sub, mul, div. Okay, so these are called as the mnemonics. So whenever I want to write down instructions in the assembly language programming, जैसे हम TASM में लिखते हैं, so for that we should know what are the different instructions. So we have already seen what are the different addressing modes, how they are categorized. Total they are 12. Okay. Now today's lecture, in today's session, we'll be talking about the instruction sets. Already this PPT has been mailed to you, and today we'll be seeing that these instructions, and after these instructions, okay, we will be seeing the program in the TASM. मैंने जो पहले लिया था program in the TASM with some modifications, the same program I will explain you with the addition of two 8-bit numbers and how do you proceed for that. Okay, so all of you pay attention on the screen now. 8086 supports six types of instructions, and these instructions are data transfer. जैसे देखो नाम लिखा है डेटा ट्रांसफर, तो यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसफर करेंगे डेटा को यहाँ से वहां. तो कहाँ से कहाँ हम कर सकते हैं, वी विल सी इन दिस डेटा ट्रांसफर. अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हम देखेंगे विच आर द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस वी कैन डू. जैसे आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं. लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस विल सी what logical operations we can do on the data. The logical operations can be AND, OR, XOR, NOT, shift, rotate. So these are the commands or the instructions which will come under the logical instructions. String manipulation instructions में, these are the instructions which we will be using to manipulate some of the strings. Okay, manipulate करना है, अगर string को manipulate करना है तो these instructions will be using. Process control instructions. Okay, process control, we'll see what do you mean by process control जब हम वहाँ पे जाएंगे. और control transfer, we'll see the 6th one also. So we'll go one by one. I want everyone to pay attention properly. कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज रुको मुझे. ओके, ये मैं अगर फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाता था तो इट वुड बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन अभी ये मैं बोर्ड पे नहीं सिखा सकता. अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो इट विल टेक मेनी मोर सेशंस. ओके, इट विल टेक मेनी मोर सेशंस. सो दैट्स व्हाई यू. हाँ सर, हमें कुछ लिखना नहीं है ना अभी? नहीं, अभी आपको लिखना नहीं है. आपको जो मैंने पीपीटी दी है, आपको मैंने शेयर की, वही पीपीटी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हाँ, लिखना बोले तो फ्रॉम माय साइड नथिंग टू राइट डाउन, but if something you want that some important point is there, you can jot it down. Okay, sir. So important point is there, you can jot it down. So that's why I'm taking the slide which I've already mailed to you. So please go through that slide, and whatever the doubts you have, you can come up with the doubts and you can ask me. So first we'll start with the data transfer. So in the data transfer, I can say that these are the instructions that are used to transfer data or address into the registers, memory locations, and IO port. Now you have to understand the data transfer can take place between whom. दोनों के बीच में हमको कहाँ से कहाँ लेना है. Okay, so I can transfer the data as well as I can transfer the address. See, I won't be able to explain on the board. That's why मैं जो भी wording बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, you have to pay attention on that. Okay. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ट्रांसफर द डेटा और द एड्रेस. मैंने ऑलरेडी I have given you some of the examples in which
if the data I have to present, directly I can write down the data. But if I want to present the address has to be present in the square bracket, if you remember. Okay, so wherever in the instructions you are using the square bracket, the square bracket के अंदर जो भी कुछ रहेगा, that will imply that this particular number corresponds to the address, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा हमने तो that will be treated as a data. Okay, now data या फिर एड्रेस हमको ट्रांसफर करना है, तो we can transfer to registers. Number 1, we can take the registers. Number 1, number 2, memory locations, and number 3, IO ports. ये हमको हमारे पास तीन ही जगह है जहाँ पे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. Either you can take into the registers AX, BX, TX, DS. Okay, and there are other registers also which are present in the BIU and EU. So whatever I am saying, you have to just imagine. आपका imagination अभी यहाँ पे ज़्यादा strong चाहिए. Okay, so the registers which are present in the EU as well as in the BIU. So these registers I can use to transfer the data as well as the memory locations. So as far as the memory locations are concerned, you have the data segment, you have the code segment. As far as data transfer is concerned, I won't be using the code segment. Mostly I will be using the data segment. If it is required, I will be using stack segment, and if required, I will be using extra segment. But by default, most of the time we will be using data segment. Okay, we will be using data segment. Now when you talk about this data transfer, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो रजिस्टर में यूज कर सकता हूँ, मेमोरी लोकेशन आई कैन यूज, एंड आईओ पोर्ट आई कैन यूज. ओके, एंड आईओ पोर्ट आई कैन यूज. ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. Yeah. Okay, now the second statement says that generally involve two operands. मैंने आपको बताया था operand, that is operand 1 and operand 2. As far as if I want to do the addition, okay, first operand, now imagine the addition के लिए instruction हम use कर रहे हैं ADD AX, BX. Okay, that means your source operand is BX and your destination operand is AX. Why do I say BX as a source operand? Only because हम दो नंबर को ऐड करने वाले हैं, तो एक नंबर BX में है और दूसरा नंबर AX में है. तो BX will be the source, and after the addition of AX and BX, whatever the result will be generated, that will be stored into AX. So final destination of the result will be in your AX. So whatever the operands I am using in the particular instruction, suppose add AX, BX, so in that case BX becomes the source and AX becomes the destination. और AX और BX में इसलिए ले रहा हूँ because if I have to concern with 16 bit of number, अगर 8 bit का नंबर है तो you can take add AL, BL. Okay, तो यहाँ पे यही बता रहा है वो second statement, generally involve two operands, source operand and destination operand of the same size. इसलिए मैंने बताया था कि same size होना जरूरी है. But you can do, अगर safer side if I want to play, I can do one thing, add AX, BL, ये कर सकता हूँ. Okay, add AX, BL. तो एडिशन एक्चुअली किस में हो रही है? AL और BL में. लेकिन सपोज ऐसा होता है कि 8 बिट का एडिशन करते करते रिजल्ट 8 बिट से ज्यादा आ रहा है. सो ऑलरेडी आई हैव डन द प्रोविजन. क्या प्रोविजन करके रखा है मैंने? आई हैव टेकन द डेस्टिनेशन रजिस्टर और डेस्टिनेशन ऑपरेंड एज AX. ओके, so I have made the provision कि sometimes it might happen that addition of two 8-bit numbers will generate more than 8 bits. So in that case, there is an overflow.
तो आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है ना वो 1 हो जाएगा, because if I want to show the overflow of the addition of two 8-bit numbers, then it will be reflected in the overflow flag. Okay, so always we have to see that both the operand, that is source and the destination operand, should be of the same size. Okay, and to be safer side, your destination can be same, or it can be it can be more than the source operand. It can be more than the source operand. Okay, then the next one is, what do you mean by source? Source means a register or a memory location or an immediate data And what do you mean by destination? Destination is always register or a memory location. ये भी मैंने example दिया था. If I have to show the source can be register, or it can be a memory location, or it can be an immediate data. तो हमने जब एड्रेसिंग मोड में किया था तो हमने डेटा ही डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया था, इफ यू रिमेंबर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ add ax, 1 2 3 4 h, so without bracket 1 2 3 4 h without bracket, that means that number 1 2 3 4 h will be treated as a immediate data, and there is addition of the content in the ax with 1 2 3 4 h. After the add, whatever the result will be generated, that will be stored into ax register, because your ax register is the destination operand or destination register. Okay, and always remember, you can take the source as the immediate data, but destination will be always be register or a memory location, okay, so this is important. And most of the time, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि most of the time we are taking accumulator as the destination operand as far as operations are concerned. Accumulator means ax. Okay, so this is clear to everyone. Any one of you can. सर हाँ सर एक डाउट है. हाँ सर हम लोग जब भी से फॉर एग्जांपल मूव a कॉमा b करते हैं, दोनों 8-बिट मेमोरी लोकेशन है, तो हाँ सर वो अगर a में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है और b में है तो वो सर ऐड हो जाएंगे वो या नहीं फिर ओवर हम जब move ax comma bx करते हैं ना, तो whatever the data is present in ax and whatever the data is present in the bx, both of them will be added and the result will be stored into ax. तो ax में जो पहले था that will be overwritten by the result. सर तो मतलब मूव a कॉमा b करेंगे तो सर ऐड हो जाएगा क्या कि ओवर पूरा नहीं, अगर आप मूव कर रहे हो तो bx का कंटेंट ax में चले जाएगा बस. ओके सर. हाँ, it will be only the content which will be moved, no addition के लिए we have add. Okay sir. हाँ, come to the next line now. The size should be either a byte or a word. Byte इसलिए कहा जाता है कि अगर 1 byte है तो it is 8 bit. Okay, so you can go with 1 byte, that is 8 bit. You can go with 16 bit, or you can go with no, you can't go more than that, because a word is a 16 bit. Okay, so you can go with the size of 8 bits or 16 bits. Okay, 8 bit or 16 bits. Then 8 bit सबसे नीचे देखो, 8 bit data can only be moved to 8 bit register or memory, and a 16 bit data can be moved to 16 bit register or memory. जो मैंने पहले बताया था कि operand size should be same. So this is about the data transfer instructions in general. We'll see the instructions one by one. So the first instruction is this. Now, as far as the data transfer instruction is concerned, you please pay attention. The mnemonics. मैंने पहले बताया था mnemonics. So mnemonics are the actual instructions which will be used in the assembly language program, in the TASM. As far as TASM is concerned, you can say TASM is a assembly language program. Okay, और अगर C language बोलते हो तो it will come in C programming. Okay, but assembly language programming, if I talk about the assembly language programming, that is your TASM now. Okay, and these are the few mnemonics or the instructions used for data transfer. So I want everyone to pay attention now. Now, whenever I'm talking, can you see my cursor? Yes, sir. Yes. Now I will be taking the first instruction, move, which already I have taken. Now, in general, see what they have written. In general, the instruction can be associated with the move can be move
register 2 comma register 1 slash memory comma register 1 slash memory. That means you can move the data from either taken as the source memory location, source operand as register 1 or memory, and the destination will be either register or memory. Register 1 register 2 इसलिए कहा जाता है कि these two registers should be different. If I am taking source as a register and destination as a register, these two registers should be different. Okay, क्योंकि मैं ऐसा नहीं लिख सकता ना, move ax comma ax. I cannot write down. If I want to move, if I want to use the instruction, I can write down move ax comma bx. So that's why register 2 and register 1 should be different. And the memory is also the location. I can use the location memory different locations. Okay, so this is in general. Now see the specific particular instruction. Okay, see the particular instruction. Move register 2 comma register 1. इसका क्या मतलब है यहाँ पे लिखा है? इसका मतलब है register 1 में जो भी content है that is move into register 2. memory comma register 1 का मतलब होता है register 1 में जो भी content है that is move into the memory location. Okay, और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे square bracket नहीं दिया लेकिन there is a bracket, so which indicates that the content in the register, that is important. Okay, that is move into the memory location given in this particular instruction. Okay, so and the third one is memory into register 2. So the content in the memory location will be moved into the register 2. Now if you see properly, you can see properly register to register movement, data transfer, register to memory data transfer, and memory to register data transfer. Okay, so we can go either of this, register to register, register to memory, and memory to register. Come to the next one. This is now if I'm taking the register slash memory as the source operand, or you can say source, or you can say the destination, and this is the source. Okay, now move register comma memory comma data. That means for specifically if I'm writing down move register comma data, that means the data. अभी देखो यहाँ पे bracket नहीं है because the data is already mentioned in the instruction itself. Okay, so the data will be moved into the register, and the data अगर मैं लिख रहा हूँ move memory comma data, this is in general, क्योंकि अगर मुझे specifically लिखना है तो मुझे memory location लिखना पड़ेगा और मुझे data लिखना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं move register comma data लिख रहा हूँ तो उसका एग्जांपल अगर मुझे देना है तो I can just give you move ax comma 1 2 3 4 h. ओके, और यहाँ पे अगर मुझे मेमोरी लोकेशन में मेंशन करना है तो here the memory location by default will be data segment, in the data segment, and the memory location here should be present in the bracket. So if I am writing down move in the square bracket 1 2 3 4 h bracket close, and the data here also 1 2 3 4 h. अभी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मेरा जो डेटा है 1 2 3 4 h that will be moved into the memory location pointed by 1 2 3 4 h. लेकिन ये सिर्फ मेरा ऑफसेट एड्रेस रहेगा क्योंकि मुझे फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो सब माइक्रो प्रोसेसर करता है. ओके, बिकॉज आई एम राइटिंग डाउन हियर ओनली 16 bit and your physical memory is of 20 bits. So the calculation already I have explained you that will be taken place in the memory in the processor, and that will be pointed to the memory location, and then this data will be moved into that memory location. That is the meaning. I hope you have understood this. Okay, then comes the next one. Now here जैसे एक move था, अभी मैंने move का बताया तो move में ये दो है in general. Then we are going to this exchange now. Exchange. Okay, अब exchange में simple, exchange में आप actually swap कर रहे हो, अब for example in general exchange the syntax could be exchange register 2 comma memory or slash memory comma register 1, and here they have given an example exchange register 2 comma register 1. इसका मतलब क्या है? register 1 का जो भी कंटेंट है और register 2 का जो भी कंटेंट है ये दोनों एक्सचेंज हुए. register 1 का कंटेंट register 2 और register 2 का कंटेंट register 1, इसलिए ये देखो एरो कैसे दिए. ओके,
और यहाँ पे देखो एरो कैसे है. Okay, so if I want to do exchange between the two registers, I can directly use this instruction, exchange register 2 comma register 1. And to be more specific, if we are write down exchange ax comma bx, तो bx का content ax में और ax का content bx में. As simple as it is. Okay, as simple as it is. Okay, see, I am not giving you anything in the writing. I am explaining you the instruction using the slides. Okay, so whatever thing you import, आपको जो भी important दिखता है, you can do, you can just write down in your notebook. Okay, अगर मुझे रजिस्टर टू मेमोरी अगर एक्सचेंज करना है तो आप ये एक्सटेंशन लिख सकते हो. ओके, एक्सचेंज मेमोरी का नाम, मेमोरी का लोकेशन मेंशन करो और रजिस्टर मेंशन करो. सो क्या होगा, रजिस्टर 1 का मेमोरी में और मेमोरी का रजिस्टर में. सो दिस इज एक्सचेंज. ओके, दिस इज एक्सचेंज. Then we'll go to the next. Now this is a push. This push is important. Push instruction is important. Now push and pop. These are the two instructions which are important. Okay. So to explain this instruction, I have to open the Jamboard. क्योंकि Jamboard में ये properly मैं बता पाऊंगा. Yes, all of you pay attention. Now you know that you have a memory. Okay, you have a memory. So this is a memory location. This is a memory location. Okay. Now this memory location, this will be taken as a data segment. For example, you can take the data segment. Okay. Now when you execute the instruction, for example, अगर मैं लिख रहा हूँ push, if I am writing down the instruction as push, and the memory. Push and the memory. If this is the instruction I'm having, okay. Now the stack pointer is decremented by 2 and the content of 16-bit memory is pushed to stack memory pointed by a stack pointer. Now this is your memory location, and there is one more which is called as a stack, which is called as a stack memory, okay. Now in the stack memory, now this is what, this is stack memory, okay. And this is your, you can say this is your data memory. So you can consider this whole as suppose the data segment. This is as a data segment. Okay. And there is one more memory location which will be taken as a stack segment. Okay. Stack segment. Now if I want to move some data from the data segment into the stack segment, memory, okay, or stack segment, मैं stack memory बोल सकता हूँ because it is also the part of this whole memory, because आपको पता है the whole memory comprises of data segment, stack segment, code segment and extra segment. So but if I want to transmit the data or transfer the data from the data segment into the stack memory, okay, then you can use this instruction, that is push no comma and the memory location, okay, and the memory location. Now what will happen, now ये जो पहला लोकेशन है, okay, ये जो पहला लोकेशन है, this will be pointed by stack pointer, ये मैंने सब सिखाया है, stack pointer, okay. Now this is the first memory location, given by the stack pointer, okay.
Now, if you want to move the 16 bit of data, you know that here it is a 8 bit data, and उसके बाद जो है, then you have 8 bit data. Now, if I want to transfer 16 bit of data, so what will happen? The first lower 8 bit से 8 bit जाएगा, और बाद में हायर लोकेशन से दूसरा 8 बिट जाएगा, बिकॉज हर एक लोकेशन का होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 8 बिट का है. ओके, so first 8 bit will be transmitted and the next 8 bit will be transmitted. Okay, now ये ट्रांसफर करना है मुझे स्टैक सेगमेंट में, स्टैक मेमोरी में, स्टैक मेमोरी. नाउ स्टैक मेमोरी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए एस. What is this MAS? MAS stands for memory address in stack. Memory address in stack. Okay. और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MA, MA, memory address. Now by default अगर मैं सिर्फ MA लिखता हूँ तो by default I am talking about the data segment. तो यहाँ पे MAD लिखने की जरूरत नहीं है. Okay. लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन by default MA will be treated as the data segment का memory address. और अगर मैं MAS लिखता हूँ, S लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं S नहीं लिखता तो it should not be that I am talking about the data segment. Okay, so I should show with MAS. So memory address of the stack, memory address of the stack. Okay, now how do you transfer this 8 bit and 8 bit? What will happen? Your stack pointer जो पहले memory address को locate कर रहा है, okay, वो क्या होता है, that will be decremented by 2. So that is decremented by 2 means, can I say SP minus 2? SP minus 2. Okay, so decrement होता है 2 का मतलब क्या होता है, इनिशियली ये लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, वो डिक्रीमेंट होगा 2 minus 2, तो वो जाएगा यहाँ पे, वो जाएगा यहाँ पे, वो जाएगा यहाँ पे. Okay, so initial SP is this. When I am decremented by 2, then it will go to this location. It will go to this location. Okay, अब क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद SP minus 2 पे जाने के बाद ये 8 बिट का जो डेटा है पहले वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. ओके, 8 बिट यहाँ पे आ जाएगा. बाद में ये जो SP minus 2 का जो है ये पॉइंटर है, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि 8 बिट यहाँ पे कॉपी कर लिया. बाद में ये जो दूसरा 8 बिट है, ये जो दूसरा 8 बिट है वो फिर यहाँ पे कॉपी करेगा. ओके, सो व्हाट विल हैपन, जब मैं 16 बिट को ट्रांसफर कर रहा हूं तो आपका स्टैक पॉइंटर 2 बार डिक्रीमेंट होगा. 2 बार डिक्रीमेंट होने के बाद लोअर 8 बिट जो है वो यहाँ पे कॉपी होगा. ये कॉपी होने के बाद आपका जो SP minus 2 जो था, दिस इज अ पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, क्योंकि वो स्टैक को बताता है इसलिए स्टैक पॉइंटर बोलते हैं उसको. तो दिस SP जो -2 था वो बाद में इंक्रीमेंट होगा तो SP -1 हो जाएगा. तो कहने से यहाँ पे इट बिकम्स SP -1. ओके, सो दिस लोकेशन, ये लोकेशन पे वो होता है SP -1. और SP -1 होने के बाद ये जो दूसरा वाला जो है हायर 8 बिट्स, ये फिर ट्रांसफर होता है यहाँ पे. ओके, ये यहाँ पे होता है. ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन पुश मेमोरी. इसका मतलब द मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड इन द डेटा सेगमेंट, और अगर 16 बिट का मुझे ट्रांसफर करना है तो लोअर 8 बिट विल बी ट्रांसफर्ड एट SP -2 and the higher 8 bit will be transferred at SP -1. Okay, so that this whole 16 bit will be transferred to stack pointer. Okay, and the memory address pointed in the stack memory or stack segment can be given by MAS, and in the data segment by default it is MA, no MAD. हम by default अगर MA लिखते हैं तो हमको पता है हम डेटा सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, ये हो गया पुश के बारे में. अगर हमको उल्टा करना है, उल्टा इन द सेंस क्या करना है, हमको स्टैक पॉइंटर में से अभी हमको मेमोरी में डालना है. स्टैक पॉइंटर में से हमको मेमोरी में, स्टैक पॉइंटर में मेरा 8 बिट का डेटा है लोअर, दूसरा हायर बिट का 8 डेटा है. अभी ये मुझे ट्रांसफर करना है मेमोरी में, कौन से, डेटा सेगमेंट के.
तो इसके लिए हमको यूज करना है पॉप, POP, पॉप, पॉप इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर पॉप जैसे हम यहाँ पे पुश मेमोरी कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे पॉप मेमोरी, पॉप मेमोरी। ये सब जनरल लिख रहा हूँ, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, जैसे AX BX, वो ये सिर्फ जनरल में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सो whenever I want to do the reverse, that is transferring the 16-bit data from here to memory, then you will be using pop instruction, pop instruction, and in general the instruction will be pop memory. The instruction will be pop memory. Okay, now with this explanation, come back to our slide and see now यहाँ पे क्या है. Yes, pay attention now. Pay attention. I want everyone to have the attention on this. ये मेरा explanation होने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो please tell me. I will once again explain you. लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. Can you see here push now? Push register 16-bit या फिर memory. ये देखो ये जनरल है. आप रजिस्टर भी यूज कर सकते हो, आप मेमोरी भी यूज कर सकते हो. मैंने वो जैम बोर्ड में मैंने मेमोरी बताया था. ओके, तो पहले हम मेमोरी की तरफ जाते हैं. ये देखो इंस्ट्रक्शन क्या, पुश मेमोरी. अब पुश मेमोरी देखो क्या कर रही है. राइट, गो टू द राइट साइड नाउ एंड सी हियर. ये देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2. So can I say the stack pointer becomes SP-2? Your stack pointer becomes SP-2. SP-2 होने के बाद देखो क्या होता है. This is your memory address in the stack segment, MAS. Okay, that is stack memory or stack segment. Okay, now when I'm talking about the memory address, you know that it is a 20-bit physical address. Okay, तो ये देखो ये कैलकुलेशन 20-bit का है. ये देखो your stack segment is multiplied by the decimal 16 value plus your stack pointer. So can I say your stack pointer will show the base address, will show your base address. Okay, तो डेटा सेगमेंट में कौन बताता है बेस एड्रेस? एनी वन ऑफ यू प्लीज आंसर मी. डेटा सेगमेंट में बेस एड्रेस कौन बताता है? डेटा सेगमेंट में आपका बेस एड्रेस कौन बताता है? ये साची. साची, आर यू देयर? यस सर. यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का जो है, हियर योर स्टैक सेगमेंट is multiplied by the decimal value 16, then it is added with the stack pointer so that you will get the memory address in the stack. वैसे मैंने डेटा सेगमेंट के लिए भी बताया था. ओके, इन द डेटा सेगमेंट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर मल्टीप्लाइंग और वी आर अपेंडिंग 0. सो यू आर अपेंडिंग 0 या फिर यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 16 बेस 10. तो वहां पे आप डेटा सेगमेंट में आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे थे? सर. हाँ सर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर. नो, इट इज अ डेटा सेगमेंट ना. अभी देखो यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे क्या है? स्टैक सेगमेंट है. आपका स्टैक सेगमेंट, आपका डेटा सेगमेंट, आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट, आपका कोड सेगमेंट, यहाँ पे क्या होता है? आपका बेस एड्रेस प्रेजेंट होता है ना. तो वो एड्रेस को हमको 0 अपेंड करना पड़ता है. 0 अपेंड करो या फिर मल्टीप्लाई बाय 16 बेस 10 करो. अभी यहाँ पे भी मुझे फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक मेमोरी का कैलकुलेशन करना है. तो वो कैसे करूंगा? स्टैक सेगमेंट को जो वैल्यू है उसको मैं 0 अपेंड कर दूंगा या फिर मल्टीप्लाई बाय 16 बेस 10 करूंगा. तो आप मेरे पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास फिर 20-bit का ये आ जाएगा. और वो आने के बाद मुझे स्टैक पॉइंटर उसको ऐड करना पड़ेगा. तो स्टैक पॉइंटर आपका एक्चुअली वो लोकेशन बताता है, लेकिन स्टैक पॉइंटर आपको पता है वो 16 बिट का होता है. और आपका फिजिकल एड्रेस होता है मेमोरी, स्टैक रहे, मेमोरी रहे या फिर डेटा सेगमेंट रहे, कुछ भी रहे, आपका जो फिजिकल मेमोरी वो 20-bit का होता है. सो हाउ डू यू कन्वर्ट? एज फार एज नाउ स्टैक memory is concerned, you have to add stack pointer to the
SS, that is stack segment into 16 base 10. Stack segment into 16 base 10. Okay, then you will get the memory address, that is 20-bit memory address. और यही अगर मैं डेटा सेगमेंट के बारे में बोलूंगा तो मैं बताऊंगा डेटा सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय 16 टू द बेस 10 प्लस यहाँ पे एसपी की जगह पे क्या आएगा सर DI, yes, that is a DI, destination index और डेटा इंडेक्स यू कैन से. ओके, तो ये जो कैलकुलेशंस है ये 20 बिट फिजिकल एड्रेस के लिए है, 20 बिट फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक मेमोरी, ओके. तो ये देखो पुश मेमोरी है तो पहले क्या होगा, स्टैक पॉइंटर में जो भी वैल्यू है वो पहले 2 से डिक्रीमेंट हो जाएंगी. नाउ प्लीज इमेजिन, मैंने जो जैमबोर्ड में जो डायग्राम बनाया था तो स्टैक पॉइंटर आपके -2 हो जाएगा. वो होने के बाद आपका फिजिकल मेमोरी एड्रेस जो कैलकुलेशन कैसे होगा, दैट इज स्टैक सेगमेंट इनटू 16 टू द बेस 10 प्लस स्टैक पॉइंटर. ओके, ये होने के बाद आपका जो मेमोरी में जो कंटेंट है, ये मेरा कर्सर देखो क्या बता रहा है. मेमोरी में जो कंटेंट है मुझे 16 बिट को मूव करना है, तो पहला 8 बिट जाएगा MAS में और दूसरा 8 बिट जाएगा MAS+1 में. तो मैं बोल सकता हूँ ना 8 बिट जाएगा MAS में और MAS पॉइंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये इक्वेशन से. और बाद में नेक्स्ट लोकेशन बोले तो MAS+1, इसमें नेक्स्ट 8 बिट हायर 8 बिट का वहां पे ट्रांसफर होगा. तो ये जो सबसे नीचे वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये 2 मतलब बताता है. एक मतलब बताता है कि लोअर 8 बिट इस पहले जाएगा MAS में, हायर 8 बिट बाद में जाएगा MAS+1 में. और MAS कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए ये इक्वेशन. और स्टैक पॉइंटर जो है वो पहले इंक्रीमेंट होगा 2 से. तो जैम बोर्ड में मैंने जो बताया था ना, SP बाद में 2 बार डिक्रीमेंट, बाद में 8 बिट ट्रांसफर, बाद में मेमोरी लोकेशन +1 हो जाएगा और बाद में हायर 8 बिट ट्रांसफर. तो दैट इज पुश मेमोरी. अभी ये मैंने मेमोरी के बारे में बताया. अभी वैसे ही 16 बिट रजिस्टर अगर मुझे यूज करना है तो ये क्या करेगा, रजिस्टर जो कंटेंट है 16 बिट का, दैट विल बी पुश इनटू द स्टैक मेमोरी. वो कैसे होगा, जो आपका स्टैक पॉइंटर है वो पहले डिक्रीमेंट होगा 2 से, बाद में आपका डिक्रीमेंट होने के बाद आपका मेमोरी एड्रेस जो स्टैक मेमोरी एड्रेस है वो कैलकुलेशन ऐसा होगा. वो होने के बाद आपका जो रजिस्टर 16 बिट का है वो रजिस्टर में, सपोज आई एम राइटिंग डाउन हियर पुश BX, तो BX 16 बिट का है, तो 16 बिट है तो लोअर 8 बिट विल बी मूव्ड इनटू MAS and the higher 8 bit will be moved into MAS+1. Okay, so after you before I take your questions, please write down. पहले लिखो ऊपर पुश रजिस्टर 16/memory. इसका मतलब होता है कि मैं रजिस्टर 16 बिट ले सकता हूँ या फिर मैं मेमोरी ले सकता हूँ, ये लिखो. उसके बाद लिखो पुश रजिस्टर 16, उसके साइड में ये बनाओ, उसके साइड में ये बनाओ और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखो, मैं जो बता रहा हूँ. ये जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताऊंगा वो लिखो. और एग्जाम में भी अगर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है तो बेटर आप ऐसा एक्सप्लेन करो इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्योरेटिकली. ओके, ये क्या मैंने बोला, ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, उसके साइड में ये लिखना, और वो होने के बाद नीचे में ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखना. और एक्सप्लेनेशन ये है, प्लीज राइट डाउन. The stack pointer is decremented by 2. The stack pointer is decremented by 2. The stack pointer is decremented by 2, and the content of 16-bit register is pushed to stack memory
is pushed to stack memory pointed by SP, pointed by SP, ब्रैकेट में लिखो stack pointer, pointed by SP, pointed by SP. I am repeating again, the stack pointer is decremented by 2 and the content of 16-bit register is pushed to stack memory pointed by SP. ये लिखने के बाद सेकेंड एग्जांपल लिखो, ये लिखो पुश मेमोरी, उसके साइड में लिखो ये सब, और उसके नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन जो मैं भी बता रहा हूँ, फटाफट लिखो. See, this is the only way I find out to explain you. अभी ये सब ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए you will find the difficulty to understand, I know, but you have to cooperate. नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, इसलिए I am taking time to explain you. सर वो लास्ट लाइन, सर वो पुश टू स्टैक मेमोरी के बाद क्या था सर? पुश टू स्टैक पॉइंटर, सॉरी, पुश टू स्टैक मेमोरी पॉइंटेड बाय एसपी. हाँ ओके सर, पॉइंटेड बाय एसपी, ब्रैकेट में लिखो स्टैक पॉइंटर. सो अगेन आई एम सेइंग प्लीज हैव पेशेंस एंड प्लीज कोऑपरेट. नहीं समझ में आ रहा तो पूछो 2-3 बार, क्योंकि ये सब ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होता है. थ्योरेटिकल अगर रहता तो इट्स ओके, लेकिन ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है ये मुझे आपको ऐसे पढ़ाने पड़ेंगे. ओके, सो आफ्टर दैट राइट डाउन पुश मेमोरी. उसके बाद में ये लिखो, ये लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन लिखो, इसका 1-2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन ऐसा है. द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2, द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 and the content of 16-bit memory and the content of 16-bit memory is pushed to stack memory pointed by SP, stack memory pointed by SP. And if you want you can draw the diagram जो मैंने बनाया है. If you want you can draw this, ताकि कुछ ना कुछ तो समझ में आए कि मैंने क्या सिखाया यहाँ पे. प्लीज ड्रॉ दिस. लेफ्ट साइड में डेटा सेगमेंट बनाओ. डेटा सेगमेंट तो वो मेमोरी है, तो मेमोरी एड्रेस इज गिवन बाय MA. उसके राइट साइड में एक मेमोरी बनाओ, दैट इज द स्टैक मेमोरी. उसका फिजिकल एड्रेस अगर बताना है मुझे तो मेमोरी एड्रेस MAS. ओके, इसमें लेफ्ट में देखो डेटा सेगमेंट में 8 बिट और 8 बिट, तो 8 बिट जो है दैट इज लोअर 8 बिट और उसका ऊपर वाला 8 बिट हायर 8 बिट. ओके, तो मुझे 16 बिट ट्रांसफर करना है और आपको पता है एक लोकेशन में सिर्फ 8 बिट ही जाता है, तो मुझे 2 मेमोरी लोकेशन यूज करने पड़ेंगे 16 बिट को ट्रांसफर करने के लिए. तो पहले क्या होगा, लोअर 8 बिट ट्रांसफर होगा. कहाँ पे? पहले एसपी है, बिकॉज स्टैक पॉइंटर मुझे बताता है बेस एड्रेस ऑफ द स्टैक सेगमेंट. जैसे वहां पे डेटा सेगमेंट में कौन बता रहा था? डेटा सेगमेंट बता रहा था. तो यहाँ पे डेटा पॉइंटर, तो सॉरी स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट होगा 2 से, तो SP-2 में जाएगा लोअर 8 बिट और बाद में SP-1 उस पे जाएगा नेक्स्ट हायर 8 बिट. दिस इज विद द स्पेसिफिक पुश मेमोरी, दिस इज विद द स्पेसिफिक पुश मेमोरी. और पुश रजिस्टर अगर बताऊंगा तो ये लेफ्ट साइड का मेमोरी मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डायरेक्टली एक मेमोरी दिखाओ, सपोज BX दिखा दो जिसमें 16 बिट का डेटा है, उसमें फिर दिखाओ लोअर 8 बिट का ट्रांसफर हो रहा है स्टैक पॉइंटर में, सॉरी स्टैक सेगमेंट में, और हायर 8 बिट का ट्रांसफर हो रहा है SP-1 में, SP-1. दिस इज ओनली फॉर ये डायग्राम फॉर पुश मेमोरी. वैसे पुश रजिस्टर के लिए लेफ्ट साइड का डायग्राम नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ रजिस्टर रहेगा BX. शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes or no? If you have questions, yes, please ask me. If you don't have any questions, it means आपको अच्छे से समझ में आया या फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया.
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। इज इट ओके मनीष? यस सर. हॅलो. अरे समजते का नाही समजत? हा समजतंय सर, पण आता सम- थोडं थोडं हा करावं ठीक आहे, हा ठीक आहे, करावं लागेल, बरोबर आहे. लागेल. हा पण ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन अगर नहीं समझता है, ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज आस्क मी, मुझे यही बताना है. ओके ओके सर. ओके, विल गो टू द स्लाइड नाउ, विल गो टू द स्लाइड. यस, ये दो हो गया. तो हमने मूव किया, एक्सचेंज सीखा, हमने पुश किया. देखो पॉप, ये देखो पॉप. पहले हम पॉप मेमोरी करते क्योंकि मैंने पॉप मेमोरी सिखाई थी. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. अब देखो पॉप मेमोरी क्या कर रही है. पॉप मेमोरी क्या कर रही है? पॉप मेमोरी बोले तो स्टैक पॉइंटर में से ले लो और मेमोरी में डालो, पॉप. पुश बोले तो स्टैक मेमोरी में डालो, पुश करो डेटा. और पॉप बोले तो स्टैक मेमोरी से निकालो और कहाँ पे डालो? मेमोरी में. अगर एमईएम लिखा है तो मेमोरी, और अगर रजिस्टर लिखा है तो रजिस्टर में डालो. तो हम पहले मेमोरी का देखते. तो पहले क्या होगा आपका, ये देखो एमएस. एमएस बोले तो मेमोरी एड्रेस ऑफ स्टैक सेगमेंट या फिर मेमोरी, स्टैक मेमोरी. तो वो क्या होगा, पहले पहले एमएस का कैलकुलेशन होगा. वो कैलकुलेशन होगा आपका एसपी के थ्रू. वो होने के बाद ये देखो क्या हो रहा है. पहले आपका एमएस में जो डेटा है वो पहले मेमोरी में जाएगा, और एमएस प्लस 1 का जो डेटा है वो बाद में नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाएगा. ओके, सो एमएस का डेटा मेमोरी में, एमएस प्लस 1 का डेटा मेमोरी के नेक्स्ट लोकेशन में. ओके, और क्या होगा देखो, आपका स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2. योर स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2. ओके, ये स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2. ये होने के बाद आपका स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, क्योंकि एसपी पहले कहाँ पॉइंट करेगा? एमएएस को पॉइंट करेगा. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. पहले आपका एसपी जो है वो एमएएस को पॉइंट करेगा. बाद में एमएएस का लोकेशन मेमोरी में जाने के बाद फिर वो होगा एसपी प्लस 1. तो एसपी प्लस 1 यानी एमएएस प्लस 1 वो कंटेंट में सेकेंड मेमोरी लोकेशन में जाएगा. बाद में आपका एसपी प्लस 2 हो जाएगा, एसपी प्लस 2 हो जाएगा. ओके, सो आई वांट यू टू राइट डाउन. पहले पॉप मेमोरी लिखो, या फिर ऐसा लिखो पॉप रजिस्टर 16/मेमोरी. उसके नीचे लिखो पहले पॉप एम मेमोरी. उसके साइड में लिखो ये वाला चीज, और उसके बाद राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फॉर पॉप. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर जो स्टैक पॉइंटर है सर, वो अगर लोअर 8 बिट ट्रांसफर हो रहा है स्टैक से मेमोरी में, तो सर वो हाँ. पहले उसके पहले होगा 1 से इंक्रीमेंट, राइट? मतलब सर नहीं, इंस्ट्रक्शन से नहीं, पहले. हाँ नहीं, पहले क्या होगा, पहले आपका स्टैक पॉइंटर एमएस को पॉइंट करेगा, बराबर है. Yes. हाँ सर. एमएस को पॉइंट किया, और बाद में ट्रांसफर होगा एमएस टू मेमोरी. बाद में एसपी प्लस होगा. बाद में एमएस प्लस 1 का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर होगा. वो होने के बाद आपका एसपी प्लस 2 हो जाएगा, यानी एसपी. हाँ, इसका मतलब क्या है, पहले एसपी डेटा, पहले एसपी, बाद में एमएस टू मेमोरी, बाद में एसपी प्लस 1, बाद यानी एमएस प्लस 1 इंटू नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, और बाद में एसपी प्लस 2. बट सर अगर हम लोगों को डेटा ट्रांसफर करना है स्टैक से मेमोरी में, तो सर पहले एसपी इंक्रीमेंट होना चाहिए, बाद में वो ट्रांसफर होना चाहिए ना सर? नहीं, पहले क्या हो, नहीं, पहले क्या होगा, एक काम करो, पहले ये लिखो, मैं आपको लिख के देता हूँ. पहले आप एक काम करो, पॉप मेमोरी लिखो, उसके साइड में आप ये चीजें लिखो 1 2 3 लाइन, और उसके बाद में लिखो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. एंड एक्सप्लेनेशन इज, आपको अभी एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा. द कंटेंट ऑफ 16-bit स्टैक मेमोरी, द कंटेंट ऑफ 16-bit स्टैक मेमोरी. स्टैक में भी है ना, हर एक लोकेशन 8 बिट का होता है, याद में रखना. और 16 बिट मुझे ट्रांसफर करना है मेमोरी में,
फ्रॉम स्टैक मेमोरी में से, तो स्टैक मेमोरी का पहला लोकेशन 8 बिट और उसका दूसरा लोकेशन 8 बिट, दोनों मिला के 8 + 8 16। ओके, तो आपने क्या लिखा, द कंटेंट ऑफ 16 बिट स्टैक मेमोरी पॉइंटेड बाय एसपी, पॉइंटेड बाय एसपी, पॉइंटेड बाय एसपी, ब्रैकेट में लिखो लगे तो स्टैक पॉइंटर, is moved to memory, is moved to memory, is moved to memory, and the stack pointer is incremented by 2, and the stack pointer is incremented by 2, and the stack pointer is incremented by 2. इसका मतलब क्या है, पहला 8 बिट MAS से मेमोरी, दूसरा 8 बिट MAS +1 से नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो MAS pointed by SP, MAS +1 pointed by SP +1, then after the transfer your stack pointer becomes SP +2। अभी समझा? यस सर। Shall I explain on the diagram? हाँ सर, एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ, यस यस यस, ये देखो अभी मैं बता रहा हूँ, प्लीज ऑल ऑफ यू सी हियर। ये आपका स्टैक मेमोरी, ये आपका स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी लोकेशन बता रहा है बाय एसपी, बाय एसपी। ओके, ये आपका डेटा सेगमेंट, डेटा मेमोरी गिवन बाय एमए, एमए बोले तो डेटा सेगमेंट खत्म, और ये है MAS, MAS। ओके, अभी आपका स्टैक पॉइंटर है, ये आपका, आपको 16 बिट ट्रांसफर करना है ना, तो आप पॉप मेमोरी यूज करोगे, तो पहला 8 बिट यहाँ पे है और दूसरा 8 बिट यहाँ पे है। ओके, तो मुझे ये 16 बिट मुझे ट्रांसफर करना है, ये टोटल। ओके, और ये आपका मेमोरी डेटा मेमोरी है। ओके, तो ये स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पहले पॉइंट कर रहा है, तो ये 8 बिट पहले जाएगा मेमोरी में, आपने वहां पे लिखा था डायग्राम में था MEM, सॉरी वो इंस्ट्रक्शंस में था MEM। तो ये है जो 8 बिट है ना, दिस इज नथिंग बट MAS। ओके, बाद में स्टैक पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो इट बिकम्स SP +1, SP +1, SP +1। तो ये लोड होने के बाद ये नेक्स्ट वाला 8 बिट जाएगा, ये लोकेशन क्या है, MAS +1, MAS +1 ना, ये नीचे वाला था MAS, हाँ और सर। बाद में 8 बिट ट्रांसफर होने के बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंटेड बाय 1, बाद में MAS +1 में जो भी डेटा है वो जाएगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, ये वाला नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, ये वाला नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। अब ये होने के बाद आपका SP यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा ना आपका SP, तो ये क्या हो जाएगा, SP +2, यस SP +2। हाँ सर, अभी समझा। अभी समझा? हाँ सर। तो मैंने अभी जो लिख के दिया उसके नीचे ये डायग्राम भी बना दो ताकि समझ में आए। दिस इज फॉर पॉप मेमोरी। देखो, एक दो इंस्ट्रक्शन सिखाने के लिए मुझे 1 घंटा 2 घंटा लगा तो भी चलेगा, यू शुड हैव पेशेंस, आई हैव पेशेंस टू एक्सप्लेन यू। ये पेशेंस इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीखने में ये टाइम जाता है। ओके, सो बट इट शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर पॉप मेमोरी। इसलिए हमेशा याद रखो, पुश या फिर पॉप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्टैक मेमोरी। पुश या पॉप बोलूंगा तो आपको आपके आंखों के सामने आपको स्टैक पॉइंटर दिखना चाहिए, स्टैक मेमोरी दिखना चाहिए, MAS दिखना चाहिए, ये सब दिखना चाहिए। और मैं पुश करूंगा तो आपको पता है कि मैं स्टैक में पुश कर रहा हूँ डेटा, और पॉप कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं वो स्टैक में से डेटा कहीं और मूव कर रहा हूँ। इट कैन बी ईदर मेमोरी और इट कैन बी द रजिस्टर।
It can be the register. I hope you have understood this. ये सबने डायग्राम बना दिया? Yes, sir. Okay. Shall we proceed? So we'll proceed further. Now we'll go with the, मैंने push ले लिया, pop ले लिया. The next thing for the for pop, ये pop के लिए आप खुद लिख सकते हो, वही है. मैंने push register 16 जो बताया था, उसका reverse यहाँ पे. Okay. So I won't waste my time now. Yes, this is important now. In and out. So this is important. In a comma dx या फिर in a comma 8 bit address, ADDR 8, ये जो आप किताब यूज कर रहे हो ना नागुर कहानी की, उसमें ये सब नोटेशन है. तो ADDR 8 का मतलब होता है 8 bit of address, 8 bit of address. So in a comma square, so now see a square bracket, that means dx में जो content है that will be treated as a memory address. Okay, अब ये देखो क्या कर रहा है. To be more specific now, in AL comma bracket dx, in AL comma bracket dx. Now remember, your in and out instructions are used, pay attention to my words, are used to transfer the data into the input output device. इसका मतलब क्या होता है? Taking the data from the input device by using in instruction and giving out the data to the output device by using the out instruction. इसलिए in अलग से instruction है और out अलग से instruction है. Okay, I am repeating again. In and out instructions are used to transfer the data between processor and the IO device, between the processor and the IO device. अभी तक अब तक हमने क्या कर रहे थे? हम मेमोरी टू मेमोरी, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, यही हम कर रहे थे. हम यही कर रहे थे. ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अभी डेटा कहां से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? फ्रॉम प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, फ्रॉम प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो इसलिए हमको कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करने हैं? इन इंस्ट्रक्शन एंड आउट इंस्ट्रक्शन. ओके, इन इंस्ट्रक्शन एंड आउट इंस्ट्रक्शन. So we have to understand how these instructions are executed. We'll take the first example now. In AL comma dx, please write down, all of you write down. In AL comma dx, उसके साइड में लिखो, this is important, port address equals to, in the bracket dx, port address equals to the dx, और बाद में लिखो the port address is moved into AL. So AL ऐसा एरो दिखा दो और पोर्ट लिख दो. Okay, and write down the explanation for this. We'll go one by one. Okay, तो आप किसके लिए लिख रहे हो? In AL comma dx, और आपने साइड में लिखा ये वाला, और write down the explanation, all of you, the explanation for this in instruction. सर वो लिखना है सर. हाँ वो लिखो. लिखा क्या आपने? सर एक मिनट सर. हाँ लिखो लिखो. ये पहला वाला इंस्ट्रक्शन लिखना है आप सबको. इन AL comma dx, उसका मतलब होता है पोर्ट एड्रेस इज इक्वल्स टू dx, और उसके नीचे लिखो इन ब्रैकेट AL, शो दिस एरो, एंड इन द ब्रैकेट पोर्ट. अब इस दोनों का क्या मतलब होता है ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं. डन सर. डन. ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू, राइट डाउन ऑल ऑफ यू. The content of 8-bit port, the content of 8-bit port whose address is specified by DX register, whose address is specified by DX register, whose address is specified by DX register is transferred to
is transferred to 8-bit accumulator ब्रैकेट में AL, 8-bit accumulator ब्रैकेट में AL. I am repeating again, the content of 8-bit port whose address is specified by DX register is transferred to 8-bit accumulator ब्रैकेट में AL, ब्रैकेट में AL. नाउ पे अटेंशन, आपको पता है कि आपको अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाना है माइक्रो प्रोसेसर को, तो आपको माइक्रो प्रोसेसर का इनपुट आउटपुट पोर्ट यूज करना है, पोर्ट. ओके, और वो पोर्ट के एड्रेसेस होते हैं, वो पोर्ट के एड्रेसेस होते हैं. ओके, अगर आपने एक पोर्ट पे आपको डेटा लेना है माइक्रो प्रोसेसर को, ओके, तो दैट पोर्ट एड्रेस विल बी मेंशन्ड इन द DX. The port address will be mentioned in the DX. So now as I'm using AL means 8-bit. तो आपको पता है the content of port, the content of the port is 8-bit. The content of the port is 8-bit. और ये पोर्ट का एड्रेस कहाँ पे मेंशन है? DX में. ये पोर्ट का एड्रेस कहाँ पे मेंशन, जहाँ से मुझे डेटा लेना है वो एड्रेस कहाँ पे मेंशन है? DX में. ओके, वो मेंशन है DX में, इसलिए देखो DX स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, बिकॉज इट इज यूजिंग एज ए एड्रेस. और किसका एड्रेस? पोर्ट का एड्रेस. ओके, देन द पोर्ट का जो 8-बिट का कंटेंट है, ये देखो यहाँ पे द पोर्ट का 8-बिट का जो कंटेंट है दैट इज मूव इनटू AL, दैट इज मूव इनटू AL. अगर 16-बिट का डेटा है तो उसके लिए नीचे वाला इन AX, DX. तो क्या है? DX जो पोर्ट का एड्रेस बता रहा है, DX जो पोर्ट का एड्रेस बता रहा है, वो पोर्ट में जो 16-बिट का डेटा है वो मूव करना है AX में, वो मूव करना है AX में. ओके, तो इनिशियली मुझे पता नहीं चलता कि मुझे जो डेटा ट्रांसफर करना है वो 8-बिट है या 16-बिट का है. वो कब पता चलता है? हम AX यूज कर रहे हैं या AL में. अगर हम AL यूज कर रहे हैं तो वो पोर्ट में जो डेटा है वो 8-बिट का है, और अगर AX यूज कर रहे हैं तो पोर्ट में जो डेटा है वो 16-बिट का है, वो 16-बिट का है. और यहाँ पे हम जो DX यूज कर रहे हैं दैट इज जस्ट शोइंग यू द पोर्ट एड्रेस, दैट इज जस्ट शोइंग यू द पोर्ट एड्रेस. वही अगर मुझे अभी नेक्स्ट वाला, ये हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप एड्रेस भी दे सकते हो. तो हम अगर इन AL को हम एड्रेस दे रहे हैं तो इसका मतलब वो एड्रेस, वो जो एड्रेस है उसमें जो कंटेंट है वो जा रहा है AL में, वो जा रहा है AL में. और अगर वो 8-बिट का एड्रेस है, सॉरी, द कंटेंट अगर 8-बिट का है, द कंटेंट अगर 8-बिट का है दैट विल बी मूव इनटू AL. लेकिन अगर वो कंटेंट 16-बिट का है तो दैट विल बी मूव इनटू AX. हम AL लिख नहीं सकते, इसलिए याद रखो 8-बिट के लिए AL और 16-बिट के लिए AX. और एड्रेस कितना है? 8-बिट का एड्रेस है, 8-बिट का एड्रेस है. ये दिख रहा है ना 8, दैट इज 8-बिट एड्रेस. लेकिन 8-बिट एड्रेस जो है, अगर 8-बिट एड्रेस है लेकिन वो पोर्ट में कितना बिट का डेटा है, वो अगर 8-बिट का डेटा है तो वो AL में जाएगा. अगर 16-बिट का है तो आपको AL यूज नहीं कर सकते, आपको AX यूज करना पड़ेगा. तो दैट इज अबाउट इन बोले तो पोर्ट में से माइक्रो प्रोसेसर में डालने का इन. और अगर आउट करना है, ये देखो आउट करना है, तो आउट के लिए देखो क्या है? आउट DX, AL, यानी पोर्ट एड्रेस विल बी मेंशन्ड बाय DX. और AL का जो कंटेंट है, वो AL का जो कंटेंट है, अभी यहाँ पे AL है तो मैं बोल सकता हूँ 8-बिट विल बी मूव इनटू दैट पोर्ट एड्रेस. और अगर DX, AX है तो वो पोर्ट का एड्रेस विल बी मेंशन्ड इन द DX. और AX बोले तो 16-बिट दैट विल बी मूव इनटू दैट पोर्ट एड्रेस. वैसे अगर यूज कर रहा हूँ आउट एड्रेस, A, तो इसका मतलब AL में जो कंटेंट है 8-बिट का दैट विल बी मूव इनटू दैट एड्रेस, विल बी मूव इनटू द एड्रेस. एंड AX में जो 16-बिट का कंटेंट है दैट विल बी मूव इनटू द 8-बिट ऑफ एड्रेस. यहाँ पे याद में रखना 8-बिट ऑफ एड्रेस, 8-बिट ऑफ एड्रेस. यहाँ पे कंटेंट है 8-बिट और यहाँ पे कंटेंट है 16-बिट, लेकिन एड्रेस बता रहा है सिर्फ 8-बिट से, एड्रेस बता रहा है 8-बिट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क.
If you have questions, please ask. Any questions? Any queries? सर हाँ सर इसके प्रीवियस वाले में पॉप में सर हम लोग पुश एंड पॉप में सर जो देख रहे थे सर हाँ उसमें सर पॉप में जब डेटा है वो हाँ। सर DS में मूव हो रहा है ना सर। तो सर हम लोग लेकिन हम लोगों को तो एक्सटर्नल मेमोरी में मूव करना है ना डेटा। नहीं, कौन सा पॉप की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर पॉप में सर जब आपने ये बताया तो फाइनल डेटा MAS से MA में मूव हो रहा है ना सर। हाँ एमए में, हाँ एमए में बरोबर है। तो सर वो मेमोरी एड्रेसिंग तो सर वहां से डेटा फिर फर्दर कैसे मूव होगा एक्सटर्नल मेमोरी में। मतलब हम लोग तो सर ये इंस्ट्रक्शन में सर नहीं, फाइनली डेटा सेगमेंट रजिस्टर में ही स्टोर कर रहे हैं ना डेटा। हाँ ना, तो फिर डेटा सेगमेंट रजिस्टर बोले तो आपका एक्सटर्नल मेमोरी हो गया ना वो। माइक्रो प्रोसेसर को खुद की मेमोरी नहीं होती ना, माइक्रो प्रोसेसर को खुद की मेमोरी नहीं ओके होती है, उसको सिर्फ सीपीयू होता है और मेमोरी आपको अपने को अलग से लगाना पड़ता है। तो मैं डेटा रजिस्टर में डाल सकता हूँ, जब रजिस्टर की बात कर रहा हूँ तो माइक्रो प्रोसेसर का खुद का रजिस्टर होता है, लेकिन अगर मुझे मेमोरी में डालना है तो दैट इज द एक्सटर्नल मेमोरी। हाँ सर तो फिर सर डेटा जो हमने मेमोरी सर ये जो टर्म यूज कर रहे थे सर ये एक्सटर्नल मेमोरी है या फिर डेटा सेगमेंट रजिस्टर का मेमोरी है सर। एक्सटर्नल मेमोरी ये बोले तो दैट इज द डेटा सेगमेंट, ये जो आप बोल रहे हो ना, यस सर। ये एक बात बताओ, ये जो आप मेमोरी, ये इंस्ट्रक्शन जो है पॉप मेमोरी वाला, तो हाँ ये सर जो उसमें पॉप मेमोरी वाला जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये जो मेमोरी है ना, ये डेटा सेगमेंट है। ये डेटा, मैं इसलिए तो बोला डेटा सेगमेंट बोले तो MA, ओके सर। हाँ दिस इज MA, that is your memory address, and by default it is a data segment, by default it is a data segment। ओके सर समझा। समझा? ओके। हाँ सर। इसमें कुछ डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? शैल वी प्रोसीड फर्दर? सर एक डाउट पूछना है। हाँ सर हम लोग जो टाइजम डॉस बॉक्स में यूज करते हैं सर हाँ सर उसमें मतलब जो मेमोरी यूज होगा सर वर्चुअल मेमोरी सर हाँ। वो भी 1 MB तक ही यूज कर सकते हैं। मतलब वो तो सॉफ्टवेयर हम लोग जो वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहे हैं वो 1 MB से ज्यादा ग्रेटर नहीं हो सकता है क्या। नहीं, वहां पे हो सकता है, वहां पे हो सकता है, लेकिन हमको अगर 20 एड्रेस लाइन्स यूज कर रहे हैं तो हम 1 MB तक यूज कर सकते हैं। टू टू द पावर ऑफ 20, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 MB। आपको 20 एड्रेस से आप कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो? 1 MB का मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स यू आर यूजिंग। एज फार एज 8086 इज कंसर्न, इट हैज 20 एड्रेस लाइन, दैट्स व्हाई मैक्स टू मैक्स आई कैन एक्सेस 1 MB ओनली। मेरे पास ज्यादा एड्रेस लाइन्स नहीं है ना, और मुझे ज्यादा एड्रेस लाइन्स नहीं है, इसलिए मुझे 20 एड्रेस लाइन्स यूज करके मैक्स टू मैक्स 1 MB में यूज कर सकता हूँ। दैट इज द केस। हाँ अच्छा ओके सर समझा अभी समझा। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एड्रेस लाइन्स, आप कितना यूज कर सकते हो। ओके सर। Okay, so this is all about the data transfer important instructions: move, exchange, okay, push, pop, in and out. So we have seen all the instructions. Now we'll move further to see the arithmetic instructions. Okay, and already you have done, but we'll see the important ones. The first one, that is add. The first one is add instruction. हम अर्थमेटिक ले लेंगे, उसके बाद रोक देंगे, बाद में फिर मैं टाइजम दिखा दूंगा। ओके मनीष, यस सर। इट इज ओके ना? सिर्फ अर्थमेटिक में आई विल टेक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, आई विल स्टॉप, देन आई विल मूव टू द टाइजम। सर चालेल सर, पण किती वाजेपर्यंत लेक्चर होईल मग सर ते? नाही मी घेतो, म्हणजे होऊन जाईल, मला अर्थमेटिक घेऊन टाकतो फटाफट आणि नंतर टाइजम कडे जातो, ठीक आहे? हो चालेल सर. ओके,
Yes, pay attention all of you. See, we are seeing the first add instruction, ADD. We are seeing the first instruction, the add instruction. Wait. So we'll be using the first, that is add. This is the add instruction. Now ADC register 2 comma register 1, ADC register 2 comma memory, ADC memory comma register. Now what do you mean by ADC? What do you mean by ADC? Okay, अब तक हमने ADD देख रहे थे, हम अब तक ADD देख रहे थे, अभी हम देखेंगे ADC. What do you mean by ADC? Okay, now ADC means, the ADC means, this is important, the content of, if I'm talking about this particular instruction, ADC register 2 comma register 1, ये instruction क्या कर रहा है? ये कर रहा है register 1 का content is added with register 2 and the result is stored into the register 2. This is obvious, जो मैंने पहले भी बताया था. This is your source and this is your destination. This is your destination. Okay, so this is your source and this is your destination. So register 1 register 2 का content add करो, लेकिन register 2 बजा लो. तो मैं ADD भी use कर सकता था, लेकिन ADC का क्या मतलब होता है? Here what is happening, the content of register and carry flag are added and the result is stored in register 2. ADC का मतलब होता है addition with carry. Addition with carry. ADC stands for addition with carry. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? The content of registers, that is register 1 is added with register 2 as well as it is added with carry flag. Carry flag. CF. Carry flag. Carry flag. Okay. So that means carry flag, whatever the carry flag you have, that will be generated. ये देखो, carry flag. Carry flag. Now can you see here? Can you see here? It will be more clear now. Yes. See here, when you talk about register 1 plus register 2 plus carry flag, that time you are using ADC. So if I do not want to, carry flag means, आपको पता है अगर addition करने के बाद कुछ carry generate होता है, I am talking about carry flag, not the auxiliary carry. And when the carry flag is generated, whenever the carry is generated from the fourth bit, तो जब भी carry generate होता है तो your carry flag becomes 1. Your carry flag becomes 1. So that one is added with the addition of register 1 and register 2, and the whole addition is moved into register 2. So that is the meaning of ADC. Here ADC register 2 comma memory means register 2 plus memory. मेमोरी में जो भी नंबर है वो नंबर प्लस रजिस्टर 2 में जो भी नंबर है और कैरी फ्लैग विल बी एडेड टुगेदर एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू रजिस्टर 2. यहाँ पे क्या है? मेमोरी प्लस रजिस्टर 1 प्लस कैरी फ्लैग विल बी मूव इनटू रजिस्टर. दैट इज द मीनिंग. ओके, नाउ हियर you can take the data also along with the register. So can you see a register plus data plus carry flag? Here you can take the memory also. So memory plus data plus carry flag. Now here ADDAL comma data 8-bit data. Data 8 बोले तो 8-bit data और data 16 बोले तो 16-bit of data. 16-bit of data. Okay. Now what is happening here? When I'm using ADDC A comma data. Now your data can be 8-bit or it can be 16-bit. अभी ये जो दिखा है ना ADD, इसका मतलब क्या है? ADDC में क्या हो रहा है? पहले एडिशन हो रहा है with the carry. But for that you have to write down ADDC A comma data, in which data 8-bit of data is added with the content of AL and added with the CF. And here in the last one, that is 16-bit of data is added with the AX, is added with the carry flag, and that the final result will be moved into AX. That is the meaning.
ओके, देन द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है, as what we have done for addition, the subtraction के लिए भी वही है. Okay, but the difference lies whenever you talk about SBB. Now SBB means subtraction with borrow. SBB means subtraction with borrow. B for borrow. इसमें क्या हो रहा है? Register 1 minus register 2 minus CF. Here CF is nothing but your borrow. क्योंकि subtraction में borrow हो रहा है, इसका मतलब CF 1 हो रहा है, और एडिशन में कैरी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब CF1 हो रहा है. क्योंकि हमारे पास बोरो फ्लैग बोल के अलग से ऐसा फ्लैग नहीं है, हमारे पास CF है. तो CF कब काम करेगा? जब एडिशन में कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है तब CF, और सब्ट्रैक्शन में बोरो होगा जनरेट हो रहा है तो CF यूज हो रहा है. ओके, सो रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 सब्ट्रैक्टेड एंड आल्सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम CF एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द रजिस्टर 2. यहाँ पे भी वही है, रजिस्टर मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी रजिस्टर. ओके, यहाँ पे रजिस्टर डेटा, यहाँ पे मेमोरी डेटा, और यहाँ पे if the a comma data, if a comma data, then it is AL minus data, 8-bit data minus CF. The answer is stored into AL. And for SBB AX comma data 16, it is AX comma data 16 comma minus 16 data 16 minus CF, and the result will be stored into AX. Okay, so this is for the subtraction. Then the next one is increment. अगर रजिस्टर मुझे इंक्रीमेंट करना है +1 से, तो आई विल बी यूजिंग INC रजिस्टर 1. वो क्या करेगा? रजिस्टर 8 को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा. सो रजिस्टर 8 + 1 इंक्रीमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर रजिस्टर 8 आपका सपोज 7 है और आप इंक्रीमेंट करोगे तो वो बनेगा 8. दैट इज द मीनिंग. इंक्रीमेंट 16 बिट को भी हम रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर सकते. सिमिलरली मेमोरी को भी हम इंक्रीमेंट कर सकते. सो इफ इट इज 8-bit रजिस्टर, देन यूज increment register 8. This is general, ना, this is not a specific example. यहाँ पे सिर्फ बता रहा है कि आप 8-bit भी ले सकते हो, 16-bit ले सकते हो. इसका मतलब अगर INC AL ले सकता हो, AL, और INC AX ले सकता हो, तो AL आपका जो पहले वैल्यू थी उसमें 1 ऐड होंगे तो आपका AL इंक्रीमेंट हो जाएगा, और AX अगर जो पहले वैल्यू थी उसमें अगर आप इंक्रीमेंट करोगे तो AX +1 हो जाएगा. वैसे मेमोरी को भी हम इंक्रीमेंट कर सकते. Similarly, we'll go for decrement also. सर इंक्रीमेंट में मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है या मेमोरी लोकेशन 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है? नहीं, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन. क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट योर मेमोरी, ओके, दैट मीन्स द मेमोरी लोकेशन, increment memory, that means your memory location will be incremented by 1. Your memory location will be incremented by 1. Okay, so increment, whenever you are talking about increment memory, that means you are incrementing the memory location by 1 value. That is the mean. Okay, then एक मिनट, register, no, I am wrong. See here, increment memory, जैसे यहाँ पे है ना. Yes, pay attention. If I am writing down increment AL, if I am writing down the increment AL, इसका मतलब AL +1 नहीं होगा. What is the meaning of AL +1? AL में जो कंटेंट है वो इंक्रीमेंट बाय 1. वैसे अगर इंक्रीमेंट AX कर रहा हूं, what is the meaning of AX +1? AX +1, it has no meaning. But content of AX is incremented by 1 has some meaning. Similarly, if I am saying increment memory +1, it doesn't mean that location I am incrementing, but the content in the memory is incremented by 1. I hope you have understood. Yes, sir. समझा अभी. Yes. Obviously, it is not the location, but the content. So everywhere the content is incremented, everywhere the content is decremented. यहाँ पे डिक्रीमेंट है, the content is decremented by 1. यहाँ पे इंक्रीमेंटेड, the content is incremented by 1. इसलिए देखो क्या लिखा है, +1 +1 +1 -1 -1 -1. Okay, so this is about the increment and decrement. Similarly, multiplication, MUL रजिस्टर अगर कर रहा हूँ, अगर 8-bit का डेटा है तो AL into रजिस्टर वैल्यू will be multiplied and it will be moved into X. अभी याद में रखो,
ये this is important. Yes, I want everyone to pay attention. I know you may lose the patience, but that has to be, you should have the patience now. ये important है, इसलिए मेरे यहाँ पे ध्यान दो, ये important है. देखो मैंने क्या किया है, I will show here. MUL register, देखो for byte बोले तो for 8 bit, for 8 bit बोले तो आपका जो ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर जो है ना, ये 8 बिट का है. और आपने यहाँ पे कौन सा 8 बिट लिया है, ये 16 सॉरी आपने AL लिया है. ओके, तो आप जब MUL रजिस्टर लिखते हो, MUL AL लिखते हो, so what is going to happen here now, the multiplication will be done between the register value with the AL value. मैंने देखो MUL आप रजिस्टर ही लिख रहे हो, आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या लगता है, आपको लगता है एक नंबर मल्टीप्लाई बाय हेलो सर. हेलो. आवाज कट गया. हाँ. हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी. हेलो. हाँ सर आ रही. यस सर. हो Yes, सर ठीक है. यस यस. ठीक है. यस, नाउ पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन हियर. मैं आपको बता रहा था कि टू डू द मल्टीप्लीकेशन यू रिक्वायर वन नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. ओके, आपने क्या यूज किया मल, आपने सिर्फ रजिस्टर यूज किया है, रजिस्टर एंड ये रजिस्टर. ओके, अब ये रजिस्टर जो है वो आपने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे. सो दिस इज दैट 8 बिट रजिस्टर, this is that 8 bit. So can I say one part is register, so where is the other part, so by default the other part is AL, इसलिए जैसे ऐड में मैं एडिशन में मैं लिखता हूँ ऐड AL BL, वैसे यहाँ पे मैं मल AL रजिस्टर नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा मल रजिस्टर. तो बाय डिफॉल्ट ये जो दूसरा वाला जो ये नंबर है दैट इज बाय डिफॉल्ट AL, ओके, दैट इज बाय डिफॉल्ट AL. तो देखो क्या हो रहा है, 8 बिट रजिस्टर वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय AL. 8 बिट यानी ये रजिस्टर में 8 बिट है, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट. अभी बताओ 8 बिट बाय मल्टीप्लीकेशन विद 8 बिट विल हैव मोर देन 8 बिट. तो देखो मैंने AX में स्टोर किया, सॉरी ये देखो मैंने AX में स्टोर किया, AX. ओके, देखो मल रजिस्टर अगर फॉर बाइट है, अगर 8 बिट का टू 8 बिट को अगर 8 बिट बाय 8 बिट को मल्टीप्लाई करना है, क्या बोला मैंने, 8 बिट बाय 8 बिट को मल्टीप्लाई करना है, 8 बिट बाय 8 बिट को मल्टीप्लाई करना है, then the result is stored into AX, that is 16 bit. लेकिन अगर वर्ड को करना है, यानी वर्ड बोले तो 16, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 बाय 16, 16 बाय 16, 16 बाय 16. तो ये देखो फॉरवर्ड के लिए देखो क्या लिखा है, फॉरवर्ड. सी हियर the register by default is taken as AX multiply by 16 bit of register value. अभी देखो 16 by 16 करूंगा तो value will be more greater, so I cannot store in AX only. So what will happen, lower 16 bit will be stored into the AX and higher 16 bit will be stored into DX. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. I am repeating again, if I want to do the forward बोले तो
16/16 फॉरवर्ड बोलो तो 16/16 16/16 तो 16/16 बोले तो ये जो 16 बिट का रजिस्टर है वो देखो यहाँ पे, वो यहाँ पे, और ये वाला जो दूसरा वाला 16 है वो बाय डिफॉल्ट AX है, वो बाय डिफॉल्ट AX है। जैसे 8 बिट के लिए बाय डिफॉल्ट AL था, ये देखो यहाँ पे AL था, वैसे 16 के लिए बाय डिफॉल्ट AX है। तो 16/16 अगर करोगे तो आंसर बड़ा आने वाला है, तो लोअर 16 बिट जाएगा AX में और हायर 16 बिट जाएगा DX में, हायर 16 बिट जाएगा DX में। ओके, वैसे ही अगर मल मेमोरी कर रहा हूं, मल मेमोरी, तो देखो आपको दो ऑपरेंड रखते, तो एक ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन से आएगा 8 बिट और दूसरा जाएगा, दूसरा बाय डिफॉल्ट AL में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो AX में स्टोर होगा। और अगर वर्ड की बात कर रहा हूं तो मेमोरी लोकेशन देखो, वर्ड बोले तो 8 बिट एंड 8 बिट, तो आपको 16 बिट लग रहे हैं मेमोरी लोकेशन, और आपको पता है एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट, तो आपको दो मेमोरी लोकेशन यूज करने पड़ेंगे फॉर दिस, तो दैट मल्टीप्लाई बाय AX and the answer lower 8 bit will be stored into AX and the higher 8 bit will be, sorry, lower 16 bit will be stored into AX and the higher 16 bit will be stored into DX. Okay, will be stored into DX. Now this IML and the other remaining division operation you have to do by the as a homework. Okay, so for homework please do IML, ये वाला जो है IML, उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला जो डिवीजन वाला है ये करो, IDV वाला करो, and compare I will show you in the next lecture. So for you the homework is do this as a homework, that is which one, MUL का IML और डिवीजन का DIV और DIV और IDIV, ये as a homework करो. In the next lecture I will be talking about the compare instruction. I will be talking about the compare instruction. Okay. Yes, sir. Okay, now we'll go back. We will go back to the TASM now. We'll go back to the TASM. एक मिनट. Yes, we'll go to the TASM. TASM 1.4 Windows. Yes. Yeah, जिन लोगों को नहीं समझा, this is the last chance for you to understand the TASM now. Okay, तो TASM हमने ओपन किया. There appears the DOS prompt. What is the first instruction? Yes, any one of you जो प्रेजेंट थे. Sir, edit. Yes. Edit file name dot ASM. We'll go one by one. First is to edit and the file name. Okay. मैं किसके लिए बताऊं, मैं पहले 8 बिट के लिए दिखाता हूं ताकि जो लोग एब्सेंट थे, जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं, उनको समझ में आएगा 8 बिट का एडिशन. ओके, एडिट मैं लिख रहा हूं 8 बिट का एडिशन, तो ADD 8 बिट का एडिशन है, तो आई विल राइट ऑन 8.ASM. ASM is the extension for TASM. ASM is an extension for assembly language programming for TASM. So this is the file name ADD8. 8 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आपको 8 बिट का 2 8 बिट का एडिशन दिखाना. ओके, then enter. You will enter into the editor window of a TASM where you will be writing down the program. Okay, Okay, so we'll start with the program. The first is to initialize, or no, not to initialize, but to define the data segment. So it is data
segment, enter. Now I will be taking two numbers for addition of two 8-bit numbers. The first number is suppose num1. This is a variable, and you have a directive. This is called as db. But db इसलिए लिख सकता हूँ because I am taking 8-bit. So it is a defined byte. It is defined byte. And if I want to show by 16-bit, then you have to write down defined word. Okay. So num1 db, I will be taking two numbers. एक में मैं लिखता हूँ 03h और दूसरे में मैं लिखता हूँ 04h. तो num1 में 03, num2 में 04 and data ends. So this is about the data segment. Okay. Next, code segment. I can just write on here code segment. Okay. Now जैसे data segment को मैंने define किया था वैसे code segment को define करना है. Code segment, I have to assume ds colon as data. That is ds is a data segment, comma cs colon as a code. Okay. So cs colon as a code and ds as a data. Okay. ds as a data. Enter. And you have to start with the label start colon, and your instruction will start from here. So first thing is I have to move. First two instructions are common for every program. That is initialization of the data segment. How do you initialize your data segment? Move ax comma data. Enter. You can start from here. Move ds comma ax. सर ये स्टेप मुझे सर ये क्यों करते हैं सर समझा ही नहीं. ये है ना ax comma data, move ds comma data बोले तो this one I am initializing the data segment. यानी the data जहाँ पे मेरा data है that address is moved into the ax and that is moved into the data segment. See ds stands for data segment. So I mean to say that in short, move ax comma data and move ds comma ax will actually initialize your data segment. Initialize your data segment means आपका जहाँ पे डेटा होता है डेटा सेगमेंट में उसका एड्रेस लेना और डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना, वो सब ये दो इंस्ट्रक्शंस करते हैं. इसलिए ये दो इंस्ट्रक्शंस हर प्रोग्राम में रहने वाले और ये वाला भी हर इसमें रहने वाला है. आपने अज्यूम क्या किया कि ds बोले तो डेटा और cs बोले तो कोड, तो आपने अज्यूम किया. तो कोड सेगमेंट में तुरंत अज्यूम रहेगा ये वाला और उसके बाद तुरंत ये दो लाइन रहेंगे. So these two lines for initializing of the data segment, and this is to assume that ds is data and cs as code. यस सर एक और डाउट है सर. डॉट मॉडल स्मॉल क्या होता है सर? वो कोड से पहले लिखते हैं. हाँ, वो क्या है, हमारे जो पहले जो वर्जन्स थे ना TASM के, अभी हम ये वर्जन 4.1 यूज कर रहे हैं. जो पहले वाले जो TASM थे ना, अभी जो लेटेस्ट वाले TASM है उसमें हम ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है मॉडल डॉट वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि मैंने जो पढ़ा दिखाया था ना वो पुराने वर्जन्स में थे. अभी ये नए वर्जन्स में इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द मॉडल डॉट स्मॉल, दैट इज द मॉडल मीन्स वॉट एवर द मेमोरी यू आर इनिशियलाइजिंग. अगर मेमोरी स्मॉल है तो मॉडल स्मॉल आएगा, मेमोरी बिग है तो मेमोरी लार्ज आएगा. ओके. So that is depending upon the different versions of TASM we were using. But as far as this TASM version is concerned, we don't have to use that one. We have to directly go with this particular format. Data segment से start करो, num1 num2 end data segment, code segment, assume, start, move x comma data, move ds comma ax, बस ऐसे करके start करना. Okay. And the next one is move. अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ. Move al comma num1. अभी num1. तो num1 में जो भी डेटा है that is moved into al. ओके. और move मैं bl में कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? num2 ले रहा हूँ.
num2, तो num1 AL में जाएगा, num2 BL में जाएगा। बाद में आपको करना है ऐड AL कॉमा BL। अब ये क्या करेगा, ये BL में जो कंटेंट है दैट विल बी एडेड विद AL का कंटेंट, और जो रिजल्ट है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू AL, दैट विल बी स्टोर्ड इनटू AL। ओके, ये होने के बाद टू टर्मिनेट द प्रोग्राम आई नीड टू कॉल द इंटरप्ट वेक्टर 03। ये सब मैं इंटरप्ट के बारे में जब मैं सिखाऊंगा तभी लूंगा। इंटरप्ट 03H, okay, I am calling the interrupt 03, that is to terminate the program। then code, मैंने कोड सेगमेंट स्टार्ट किया था, कोड एंड्स, और मैंने स्टार्ट लेबल किया था तो उसको भी एंड करना है, तो एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट। ओके, सो दिस इज योर होल प्रोग्राम, दिस इज योर होल प्रोग्राम। कुछ भी सिंटेक्स एरर होगा वो बाद में हमको दिखाई देगा। ओके, सो वी हैव टू सेव दिस प्रोग्राम, गो टू द फाइल एंड सेव द प्रोग्राम, save the program। So this program is saved with the name as add8.asm and the कौन से फोल्डर में जाएगा, ये TASM के फोल्डर में, ये कौन से फोल्डर में जाएगा, TASM के फोल्डर में जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करना है, go to the file and exit from the editor now, exit from the editor। now tell me the steps। पहला स्टेप, अभी सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर, मुझे क्या करना है, वेट, मुझे अभी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करनी है, मुझे बाद में ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करनी है, ताकि एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो और बाद में मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँ प्रोग्राम को। तो उसके लिए ये तीन जो प्रोसीजर है वो इंपॉर्टेंट है। सो पहला वाला प्रोसीजर क्या है बताओ सर, कंपाइलेशन TASM। yes, for compilation or for compilation it is TASM and the file name add8। do I have to write down the .asm? नो सर, नो No, सर, डायरेक्टली आप TASM हाँ ऐड कर सकते हो, एंटर। now see if there is error it will show the error message none, warning message none, passes 1। ये बाकी की दो चीजें हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए एरर और वार्निंग। now sometimes it might happen that you may get the warning आती है तो चलेगा, मुझे एरर मैसेज नहीं आना चाहिए, मुझे एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। ओके, सो दिस इज ओके फॉर मी। बाद में बताओ नेक्स्ट। सर T-Link ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हाँ, T-Link ये जो कमांड है ये मेरा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो पहला TASM क्या करता है, डिबगिंग करता है, एरर कुछ हो तो बताता है। नेक्स्ट वाला लिंक वाला जो है, लिंक वो फाइल जनरेट करता है। ओके, सो व्हाट इज द सिंटैक्स, लिंक सर ये एक्सटेंड सर लिंक, सर T-Link आएगा ना सर, लिंक यस, T-Link स्पेस add8, क्या लिखो आगे, .obj। ओके, T-Link स्पेस add8। नाउ जब हम TASM फाइल नेम लिखते हैं ना तब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, ओके, तो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट फाइल कौन सी है, add8.obj। बाद में मुझे उसको कन्वर्ट करना है एग्जीक्यूटेबल फाइल में। ओके, सो फॉर दैट T-Link स्पेस add8। नाउ विदाउट एक्सटेंशन या फिर विद इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, आई विल राउट विदाउट एक्सटेंशन। अगर आपको विद एक्सटेंशन चाहिए तो आप क्या लिखोगे, .obj। ओके, तो ये सिर्फ मैं विदाउट एक्सटेंशन करता हूं, एंटर। सो टर्बो लिंक वर्जन बोरलैंड इंटरनेशनल वार्निंग नो स्टैक। okay, so that means we have linked the object file and we have created the executable file। now I want to execute the file। executable file बन गई है, कैसे बनी है, T-Link add8 उससे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे td add8 नाउ यहाँ पे एक्सटेंशन देना जरूरी है। अभी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, दैट इज exe, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है exe एंड एंटर। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे ओके करना है, यहाँ पे ओके करना है। यस, दिस इज द विंडो नाउ, दिस इज द विंडो। नाउ विल सी व्हाट इज दिस विंडो। अब लोगों को जो डाउट्स थे यहाँ पे क्लियर करो, आपको जो डाउट्स थे यहाँ पे क्लियर करो।
ओके, अभी ये देखो CS बोले तो कोड सेगमेंट में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, अभी सपोज मैं ये वाला पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देख रहा हूं, सपोज मैं ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देख रहा हूं। अभी यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली देखोगे, ओके, यहाँ पे कोड सेगमेंट है, ये देखो 005 है, 005। Now 005, actually this is the line number, and you know that your instruction pointer will indicate to the line number, आपका लाइन नंबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, that is 0000, उसके बाद 0003। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है ना, that is move AX comma something, that has occupied 2 bytes, इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया 0003 पे, उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन आया 005 पे। ओके सर हाँ सर 2 कैसे सर, 3 बाइट्स होना चाहिए ना सर, 0 1 2। देखो आपका 0, आपने इंस्ट्रक्शन आपका 00 पे है, उसने आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख रहे हो 0000 पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, लेकिन उसने खाया है 0001 0002, और बाद में आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आया है 0003 पे, तो कितना बाइट खाया उसने, 2 बाइट खाया। इसका कैसे खाया मैं बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन लिखा है आपका इसमें 0000 पे, बाद में 0001 उसने खाया, 0002 उसने खाया, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आया है 0003 में आया। इसका मतलब हाँ, इसलिए इसका मतलब 0001 खाया, 0002 खाया, इसलिए 2 बाइट्स खाए उसने। मतलब सर निमोनिक्स ने 1 बाइट एंड ऑफकोड ने 2 बाइट। यस यू आर राइट, हाँ वो मैं आगे बताने वाला था, बट दैट इज राइट, बिकॉज यू हैव रेड, दैट्स व्हाई यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, और निमोनिक्स किधर है, वो देखो निमोनिक्स ये है, ये देखो ये निमोनिक्स है, सॉरी ये है सर मूव मशीन कोड, these are machine codes, and these are mnemonics, and these are the machine codes in hexa। ओके, इसलिए देखो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, ये देखो डीबी दिख रहा है, डीबी ने 000 पे था, एडी 0001 पे था, 48 0002 पे था, और नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आया। अब इसने कितना खाया, 03 04, इसने 1 बाइट खाया। 1 बाइट कैसे खाया, देखो 8E 0003 पे, और 004 में क्या है, डीबी, और 005 में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया। ये समझा? हाँ सर समझा। हाँ, 0003 में आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखा उसका मशीन कोड यहाँ पे है, ये देखो ये मशीन कोड है 8EDB। तो आपको पता है हर एक लोकेशन 8 बिट्स खाता है, तो 8 बिट्स खाता है, इसका मतलब 1 बाइट, तो 1 बाइट 8E ने खाया और दूसरा बाइट DB ने खाया। 8E कहाँ पे है, 003 में है, और DB कहाँ है, 0004 में है, इसलिए नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आएगा, 0005। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर समझा सर। तो ये आपका कोड सेगमेंट है, ओके। अब यहाँ पे भी जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखे वो सेम टू सेम नहीं आए, लेकिन ये देयर माइट बी चेंजेस, ओके, सो नथिंग टू वरी। जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो सेव करके हमने एग्जीक्यूट किया है, ओके, अब तक हमने रन नहीं किया है। कैन यू सी हियर व्हाट इज दिस, यहाँ पे आपके सब रजिस्टर्स मिलेंगे, AX BX CX DX, सोर्स इंडेक्स, डेटा इंडेक्स, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये दिख रहा है आपको ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन दिख रही है? हाँ सर, ये ब्लू लाइन है कौन से कोड सेगमेंट पे, 0000 पे, इसलिए देखो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या बता रहा है, 0000। या ये जो आपका ये है ना, इसके कारण IP ये बता रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे लेके जाता हूं ना, अभी भी वही 0 दिखा, क्योंकि मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने रन नहीं किया प्रोग्राम। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप रन करूंगा, फिर ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर
पहले 00 था तो बाद में 003 दिखाएगा, बाद में 005 दिखेगा, बाद में 008 दिखाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम वही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लाइन नंबर को बताना। ओके, देखो आपका डेटा सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4898 ओके। तो फिर 0003 होना चाहिए ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए पॉइंट कर रहा है तो। मैंने रन नहीं किया ना, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन अब तक रन नहीं हुआ ना, 000 वाला, यही ओके सर, समझा सर। ये देखो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी शोन हियर। अब तक मैंने रन ही नहीं किया इसलिए वो 00 दिखा रहा। अब जब मैं स्टेप बाय स्टेप रन करूंगा तब ये 00 का ये आगे वाला बताएगा। ओके, और स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रेस F8। हाँ हाँ मनीष। सर मुझे एरर आ रहा है सर, आ रहा है CS अनरीचेबल फ्रॉम करंट सेगमेंट। ठीक है, रुको, पहले इसमें मैं दिखाता हूँ, बाद में अपन करके दिखाते। ठीक है, AX BX CX आ गया। देखो यहाँ पे आपके फ्लैग्स है, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, स्टैक, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, I stands for इंटर फ्लैग एंड D stands for डायरेक्शनल फ्लैग। ओके, और यहाँ पे आपके डेटा सेगमेंट्स है। ओके, अभी देखो मैं F8 करके रन करता हूँ, विल सी व्हाट हैपेंस। ये देखो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 003 दिखा रहा है, आपका AX में देखो 48AD गया है। ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं ना, यहाँ पे भी ध्यान देखना, जैसे जैसे एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वैसे वैसे वो अपडेट होता रहता है, AX BX रजिस्टर्स एंड योर फ्लैग रजिस्टर्स। फिर से देखो IP देखो 003, नेक्स्ट IP आना चाहिए 005। ये देखो DS48AD, देन AS, देन BX। ये देखो AX में 03 और AL में 03 और BL में 04, AL में 03, BL में 04। अब मैं ऐड करूंगा, एडिशन का आंसर क्या आएगा, 7H। हाँ 07H, और वो कहां पे स्टोर होना चाहिए, सर A में होएगा ना, AL में होगा ना सर। AL में, यस AL में। तो देखो आप फिर से मैं F8 दबा रहा हूं, कैन यू सी 07 देयर, कैन यू सी द 07 देयर, यहाँ पे ये वाला आपका AX इज व्हाट, AL एंड AH। AL में है 07, AH है में है 48। आई एम नॉट बॉदर अबाउट AH वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन AL। तो मेरा AL में था 03, BL में था 04। आफ्टर आई रन द प्रोग्राम, AL हो गया मेरा 07, 07 कैसे हुआ, 03 प्लस 04 गिव्स यू 07, और BL की वैल्यू वैसी की वैसी रहेंगी। ओके, अभी मुझे टर्मिनेट द प्रोग्राम, सो F8 फिर से दबाऊंगा। So your instruction pointer is there again. So we have end with the program. We have end up with the program. Okay. Now this will continue, but we are only interested with our जितना हमारी lines थी. So that is 07. Okay. Now if you want to see the, अगर हमको run करना है, that is F9. Yes, if I want to run the program, already we have run the program, so nothing to run. Now if I want to see the data, so where will we see, where you will see, you will go to the, अगर मुझे डेटा सेगमेंट में देखना है, डेटा सेगमेंट में, ओके, सो यू विल गो टू व्यू में सर जाके डंप। व्यू में जाके आपको ये करना है, वेट, डेटा सेगमेंट में आप कोई गया था डेटा सेगमेंट में, सर अभी तो मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ करंटली, बट मैंने ट्राई किया था, मतलब तो आप आया था डेटा सेगमेंट उधर।
डेटा सेगमेंट में नंबर आ रहा था एडिशन का? सर वो नहीं रीड करने नहीं समझने नहीं आ रहा था सर, कहाँ पे मतलब वो। आपको रीड करना नहीं जम रहा था क्या? हाँ सर वो रीड मेरे को समझने नहीं आ रहा था कि कहाँ पे कौन सा डेटा है सर, वही डाउट था मेन। ओके ओके ओके, वेट परमेश्वरी मैडम इज देयर? मनीष एक सेकंड सर बघतोय. मॅडम असेल तर पहा ना, तर अटेंडन्स घेऊन टाक, तोपर्यंत मी सॉर्ट आउट करतोय. नाही येत सर, नाही येत मॅम. घेऊन टाकू का अटेंडन्स? मॅन्युअली घ्या, मॅन्युअली घे. हो हो एक सेकंड. रोल नंबर 1. 1 present. 2. Roll number 2 present. Roll number 2 present. 3. 3 present. 4. Roll number 4. 5. 5 present. 6. 6 present. Happy birthday. थँक यू. मनीष वाढदिवस आहे का तुझा? 7. हो सर. 7 present. Happy birthday. थँक यू. 8. 8 present. 8 present. 9. 9 present. Happy birthday, Manish. 10. Thank 10 you. present. 10. 10 present. 11 present. 12 present. 13. 12 present. 13. 13 present. 14. 14 present. 15 present. 16. 16 present. 17. 17 present. 18. 18 present. 19. 19 present, Manish. 19 present. 20. Roll number 20. 21. 21 present. Happy birthday. Thank you. 22. 22 present. Present. Happy birthday. Thank you. 23. 23 present. 24. Present. 25. 25 present. 26. 26 present. 26 present. 27. 27. 28. 28 present. 29. 29 present. 30 present. 31. 31 present. 32. Present. 33. 33. 34 present. 35. Present. 36. Present. 37. 37 present. 38. 38 present. 39. 39 present. 39 present. 40. 40 present. 40 present. 41 present. 41. 41 present. 42 present. 43. 43 present. 45. 44 44. present. 44 present. 45. 45. 44 present. हाँ 45 present. 46 present.